Once again, I'm back with our daily segment, Market Talks with Pinnacle. So, if you would have read the commentary today, even today we had clearly indicated the support and the resistances, and the market worked exactly as per that. And if you are still not following us on Telegram, you can find the channel link on the description below, and you must follow the Telegram channels for everyday updates. So now coming back to our Nifty and Bank Nifty analysis, if you see, for the entire day Nifty remained once again in a range, or rather say in a clear range of hardly 40 to 50 points. Of course, there were some swings outside this range, but majorly the day was restricted in between these two ranges. You can clearly see this. One very interesting thing which I want to show all of you today is we have been constantly talking about the support of 18,350, and you can see that once again today the low of the day was at 18,350, which was taken very, or which was tested very nicely. If you see the low of this candle, this comes to be something around 18,344, which was just minor 6 points below the support of 18,350. Although in the commentary we had clearly mentioned that the support would lie somewhere in the range of 18,320 to 18,380. So if you see, major support throughout the day was above that 18,380, and I'll just try to show you the importance of this level 18,350. I'll just take you to the lowest time frame of 1 minute, and you can just see what happened the moment we touched, or the moment we went below 18,350. Can you see these big green candles and an immediate move of nearly 18,000, from 18,350 to 420? It's like 70-80 points move, and which came in almost like 27 to 28 minutes. So you can clearly imagine how strong this support can be going forward. So whenever you are going to trade in coming few days, make sure to mark this point on your chart. 18,350 is very important, and as usual I still stand by that if we remain above this 18,350, 18,600 becomes almost like certain. It may come tomorrow, it may come on Friday, it may come next week, whenever it is. And more important thing, the more time we spend in the range of 18,350 to 18,600, उतना ही अच्छा होगा इंडेक्स के लिए. तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए. 18,600 का टारगेट हो सकता है अपसाइड में, बशर्ते 18,350 को होल्ड करेगा, राइट. एंड फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा अपना बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं आज कि बैंक निफ्टी ने क्या किया. बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर था कंपेयर टू निफ्टी आज, क्योंकि रीज़न, कोटक बैंक बहुत अच्छा मूव दिया आज. कोटक बैंक ने, आप सभी को याद होगा, हम तो मॉर्निंग में ही एक अच्छा मूव मिला, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से वापस से बैंक निफ्टी एक छोटे से रेंज में 42,550 से लेके 42,450 के रेंज में फंसा रह गया. इट्स लाइक 100 पॉइंट के रेंज में वो फंसा रह गया, राइट. तो अब कल हमें बस अब यही देखना है कि जो आज का लो है, जो कि अराउंड 42,300 है, ये अब आगे जा कर के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और अप साइड में 42,550. तो ये दो लेवल को एकदम ध्यान रखिएगा. 42,550 ऑन द अपसाइड, डाउन साइड में 42,300. 42,300 के नीचे अगर हम लोग आते हैं तो हो सकता है एक बार वापस से हम लोग 42,000 के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं. बट जब तक हम लोग इसके ऊपर अब रहेंगे, वी कैन सी सम गुड अपसाइड, राइट. और आज हमने LTTS में एक छोटा सा ट्रेड लिया था, अगर आप देख सकते हैं. बट आइडिया तो था कि इसे रखेंगे हमें लंबा,
बट ये जो बड़ा सा मूव आया, तो मैं नॉर्मली इस टाइप के मूव्स के बाद हमेशा अपना बुक कर ही लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे। एंड एक तरह से हमारा अच्छा हुआ, हम लोगों ने जैसे ही बुक किया उसके बाद सारा दिन वो एक अच्छा खासा करेक्शन दे करके गया। बट हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसका काम हो गया। इसको अपने रेडार पे रखे रहिए, हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में ये वापस से आपको एक अच्छा सा ट्रेड देगा। और आज का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम लोग एक कैश स्टॉक डिस्कस करेंगे जो कि है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ ने पिछले 4-5 दिन में बहुत अच्छा मूव दिया है। आप देखिए ध्यान से, इसने 130 के रेंज से अच्छा सपोर्ट लेकर के ये उठना शुरू हुआ है। तो अब अगर इसमें पोजीशन बनाना है तो 155 से 160 के रेंज में कहीं भी बना सकते हैं। अपसाइड टारगेट बहुत अच्छा है, तो एक अराउंड 150 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके 148, अगर टू बी प्रिसाइज 150 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको आराम से 170, 180 या इवन 200 तक के टारगेट के लिए रख सकते हैं। अगर इसका वीकली चार्ट हम लोग देखें तो वीकली चार्ट भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से हो सकता है ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में 200 से 250 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो इसमें एंट्री बिल्कुल बनती है, बहुत अच्छी एंट्री बनती है। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना ना भूलें। हैव अ गुड डे अहेड।